So we'll start with questions which were asked in previous JEE or equivalent exams. क्योंकि जब JEE नहीं था तो there was something called as AI triple E and so forth. In Young's double slit experiment, the wavelength of light used is doubled. मतलब lambda 2 is 2 times of lambda 1 and the distance between the two slits is half. मतलब D2 is D1 by 2. The resultant fringe width becomes, simple question है, आपको याद होगा fringe width x is lambda capital D by small d. So fringe width x is proportional to lambda by d. X2 by x1. X2 by x1 is equal to lambda 2 d2, right? So what is lambda 2 by lambda 1? 2. This is d1 by d2, 2. 2 into 2 is 4. So x2 is 4 times of x1 and the fringe width becomes 4 times. Done. Simple question. Next question. A mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and unknown wavelength illuminates Young's double slit and gives rise to two overlapping interference patterns on the screen. Okay, the central maximum of both lights coincide. Further, it is observed that the third bright fringe of known light coincides with fourth bright fringe of unknown light. From this data, the wavelength of unknown light is. Simple question है, घुमा घुमा के पूछा है. What is lambda 1? 590 nanometer. What is lambda 2? Don't know. You are supposed to find it out. What is n1? 3. है ना? क्या बोला है? It is observed that third bright fringe of known. Known कौन सा था? 1. उसका कौन सा fringe? Third bright. So n1 equal to 3. और coincide with fourth bright of the unknown. मतलब n2 equal to 4. अगर आपको याद होगा तो previously we have solved questions जिसमें exactly same situation था. दो वेवलेंथ थे. मैंने आपको बताया था कि दो वेवलेंथ का दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी सब सेम है. स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस सेम है. स्लिट टू स्लिट सेम. डू यू रिमेंबर दिस? तो पार्ट होगा सेम होगा. If you don't remember, I will make you remember. We have solved this kind of question. Look, do you remember now? हमने सॉल्व किया था ये सेम टाइप का क्वेश्चन था. तो मैंने आपको बताया था कि बाकी सब सेम है. स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस सेम है, स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस सेम है. इसका मतलब पार्ट डिफरेंस विल बी सेम. तो जिस पॉइंट पे नॉन वेवलेंथ का जिस पॉइंट पे नॉन वेवलेंथ का थर्ड ब्राइट होगा उसी पॉइंट पे अननोन का फोर्थ है. लेकिन ये दोनों लाइट कहां से आ रहे हैं? स्लिट S1 एंड S2 से. तो दोनों उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. तो पार्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ इक्वल टू पार्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड. बट एक कौन सी बात हो रही है? कंस्ट्रक्टिव की. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्बडा. तो n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 lambda 2. So lambda 2 equal to n1 by n2 into lambda 1. What is n1? 3. What is n2? 4. What is lambda 1? 590. 9 नैनोमीटर में रखोगे तो इट्स जोक. क्यों? अब 3/4 मतलब 75%. 75% ऑफ 590 बराबर 600 कर लो ना. रफली अगर आप इसको रफली 600 मानते हो, रफली तो यू नो दिस इज हाउ मच. अरे 150. व्हाट इज 150 into 3? 450. तो आंसर 450 के आसपास मतलब 442. तो यू हैव आंसर एज 442.5 नैनोमीटर. ऑप्शन नंबर सी.
Next question. In Young's double-slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen is given by. मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है. अब द थिंग इज आपके पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व. तो आपके पास एक स्क्रीन है. लेट अस टेक दिस स्क्रीन. इस स्क्रीन में यू हैव 12 फ्रिंजेस of some wavelength. Okay, so how many fringes? 12. So let's take, this is one fringe. थोड़ा सा थिक कर देते हैं इसको हल्का सा. So there are in total 12 fringes. Just a minute. There are in total 12 fringes. 1, then 2, and then what you will have is in total 12. Give me a minute. We need not to spend that much of time, but पहले तो आपको समझना पड़ेगा और बाद में then you can just skip this part. बाद में we will not put that much of time in doing all this. For the time being, you have to understand. ये आ गया आपके पास in total these are how many fringes? 8. Total कितना बोला है? 12. So 12 fringes. क्योंकि question is a joke actually. So that is why you need to understand this properly. ये आ गया आपके टोटल 12. आगे क्या बोला है? अगर हमने 400 नैनोमीटर यूज किया होता इंस्टेड ऑफ 600, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द सेम सेगमेंट, मतलब इतने ही एरिया में, इन द सेम एरिया, इतना ही स्क्रीन था, इतना ही एरिया में कितने आएंगे? ज्यादा आएंगे. क्यों ज्यादा आएंगे? क्योंकि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे. वेवलेंथ कम होना मतलब फ्रिंज विड्थ कम होना. फ्रिंज विड्थ कम होना मतलब उतने ही गिवन एरिया में ज्यादा फ्रिंजेस आएंगे. तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि 12 नहीं आ सकता. दिस इज क्लियर. तो आंसर विल बी इधर बी, सी और डी. So how do you solve this question now? How will you solve this question? What is the basic idea behind this question? What is the basic idea? Did we change? Have we changed capital? No. Have we changed small d? No. Right? तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगा क्योंकि वेवलेंथ हो रहा है चेंज. पार्ट डिफरेंस चेंज होगा क्या? नहीं चेंज. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं जानबूझ के ड्रॉ किया ये बताने के लिए, आपको ये समझना चाहिए कि अगर पहले टाइप का मतलब 600 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ था, अगर उसका फ्रिंज विड्थ है x1, राइट, तो इतने एरिया में हाउ मेनी फ्रिंजेस यू हैव? n1 x1. I will use capital N here, capital N1 x1. तो जितना स्क्रीन एरिया है उसमें 12 मतलब 12 टाइम्स ऑफ x. क्यों? क्योंकि फ्रिंजेस कितने हैं? 12, राइट. 12 फ्रिंजेस है ना. Do you know? Do you remember this? थोड़ा your faces are looking blank to me. हर एक फ्रिंज का विड्थ कितना? x, करेक्ट, कैपिटल x. और पहला वेवलेंथ तो मैंने क्या बोला? x1. तो when you say कि there are 12 fringes, तो टोटल 12 into x is the distance. जो सेगमेंट है इसका डिस्टेंस कितना, लेंथ कितना हो गया इसका? 12. तो n1 x1. इतने ही डिस्टेंस में, इन द सेम डिस्टेंस, राइट, इतने ही सेगमेंट में, इतने ही सेगमेंट के में जो दूसरा टाइप है, दूसरा वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ है? 400. उसके कितने आएंगे? मतलब क्या पूछा है? n2. तो ऐसा लिख सकते हो n2 x2. Why? Because वेवलेंथ कम होना मतलब फ्रिंज का विड्थ कम होना, मतलब यहाँ पे अब ज्यादा फ्रिंजेस आएंगे. दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. हियर नाउ यू विल हैव मोर फ्रिंजेस. कितने फ्रिंजेस? n2 फ्रिंजेस, राइट.
तो यू विल कीप ऑन हैविंग मोर फ्रिंजेस हियर। तो सिर्फ आपको ये समझना है, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यू विल हैव मोर फ्रिंजेस, समथिंग लाइक दिस। तो हाउ मेनी मोर n2 नंबर है तो समझ लो, तो यू हैव n2, तो यू हैव n1 कितना 12। व्हाट इज x1? लैम्डा 1 into d by d। n2 what is x2? lambda 2 capital D by small d, cancel, right? और अब 12 times of lambda 1, what is lambda 1? 600 nanometer। n2 what is lambda 2? 400 nanometer। this is 2 this is 3 this is 1 this is 6 6 3 18। so n2 equal to 18, so there are 18 fringes। Next question. Young's double slit experiment is carried out by using green, red, and blue light. Green, red, and blue. Okay. One color at a time. So या तो green light, या तो red light, या तो blue light. The fringe width are recorded as beta G, beta R, and beta B respectively. Then which of the following is true? जो कौन कौन सा लाइट है आपके पास? ग्रीन। और कौन सा है? रेड। और कौन सा है? ब्लू। डू यू रिमेंबर विबग्योर? विबग्योर, यस। वॉयलेट, इंडिगो, विब ग्योर, राइट। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? नहीं, हमारे 3 गिवन कलर्स में से। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है? ब्लू का है। और सबसे ज्यादा किसका है? रेड का है, राइट। डू यू रिमेंबर फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बट फ्रिंज विड्थ बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू कलर, fringe width of blue color is less than fringe width of green color is less than fringe width of red color। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन? Where do you see this? ऑप्शन नंबर डी। डी है ना? बीटा आर, फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका? ग्रीन का। उसके बाद किसका? ब्लू का। ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where part difference is lambda by 6 is I. If I0 denotes the maximum intensity, then I by I0 is. Simple question है, आपको पता होगा resultant intensity IR is equal to maximum intensity I0, which is 4I actually। अगर आपको याद होगा तो ये एक्चुअली 4I होता है, 4I cos स्क्वायर पाई बाई 2। और मैक्सिमम इंटेंसिटी होना मतलब फेज डिफरेंस 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डू यू रिमेंबर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब कितना? 2n पाई, राइट। भूल गए? रिवाइज नहीं कर रहे हो? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, for maximum intensity phi is 2n pi, right। और मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं I0 से। therefore maximum intensity is I0, IR की जगह पे I0 equal to 4I cos, कैंसल, cos स्क्वायर n पाई, मैंने n equal to 0 मतलब 0, cos 0 is 1, n equal to 1 पाई, cos पाई is -1 लेकिन उसका स्क्वायर है तो वापस से हो गया +1। फिर आप जब इधर 2 डालोगे तो हो जाएगा cos of 2 पाई which is 0, उसका सॉरी cos of 2 पाई is 1, उसका स्क्वायर इज
1। फिर आप जब n इक्वल टू 3 डालोगे तो cos ऑफ 3 पाई माइनस 1, उसका स्क्वायर वापस से प्लस 1। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय I0 विच इज इक्वल टू 4i। so therefore what you need to know is रिजल्टेंट इंटेंसिटी के इक्वेशन जो होता है, जो आप 4i लिखते हो, 4i इज नथिंग बट मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर पाई बाय 2, ये याद होना चाहिए। देन आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि एक दूसरा पॉइंट है जहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 6। तो यू नो what you know is phase difference is 2 pi by lambda into path difference। so phase difference is 2 pi by lambda और path difference is lambda by 6। cancel 1 and 3 are, therefore resultant intensity IR उस पॉइंट पे इंटेंसिटी को क्या नाम दिया है, I। तो IR की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, I। तो IR इक्वल टू I, बट दिस इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2। व्हाट इज पाई, पाई बाय 3 बाय 2। मतलब यहां से आपको मिल जाएगा I बाय I0। I बाय I0 इज cos स्क्वायर पाई बाय 6। व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 6, रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर 3 बाय 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 बाय 4 ऑप्शन नंबर डी में है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference in terms of integer n corresponding to any point having half the peak intensity। अब देखो ऐसा है, क्लियर कट बोल दिया आपको, पाथ डिफरेंस एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट पे इंटेंसिटी इज हाफ द पीक इंटेंसिटी। मैंने अभी भी बताया पीक इंटेंसिटी कितना होता है, I0 और इसका हाफ, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR शुड बी I0 बाय 2। तो पहले क्वेश्चन समझो, जिस पॉइंट के लोग बात कर रहे हैं वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, और वहां पे क्या फाइंड करना है आपको, पाथ डिफरेंस। ये है गिवन, राइट। बट डू यू रिमेंबर अगेन, IR इक्वल टू पीक इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2। अगेन द सेम लॉजिक, आपको बताया है कि यहाँ पे स्लिट का विड्थ अलग अलग है, नहीं, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, नहीं, तो फिर यू विल बी टेकिंग इंटेंसिटी ऑफ बोथ द वेव्स एज सेम। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से व्हाट यू विल गेट इज फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2 you will get I0, this is IR, I0 by 2, I0 by 2 equal to I0 cos square pi by 2, करेक्ट। कैंसल एंड कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, हाफ। हाफ मतलब कितना, हाफ मतलब 1 by रूट 2 का स्क्वायर, 1 by रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर pi by 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 1 by रूट 2 इक्वल टू cos ऑफ pi by 2। 1 by रूट 2 cos की वैल्यू कब आती है, pi by 4 पे, मतलब कितने पे, 45 डिग्रीज पे। तो cos ऑफ pi by 2, तो pi by 4 इक्वल टू pi by 2, 1 जा एंड 2 जा, तो फेज डिफरेंस कितना मिल गया आपको, pi by 2, करेक्ट। एक बार आपके पास फेज डिफरेंस है तो आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। हाउ डू यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस इफ यू हैव फेज डिफरेंस, अभी भी बताया था मैंने। ठीक, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो आपको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, तो यू विल हैव टू डू दिस, ओके। तो अब व्हाट यू विल डू इज, बट व्हाट यू नो इज, but what we know is this, if phase difference is 2 pi by lambda into path difference, phase difference pi by 2। अब इधर एक छोटी सी गलती हो सकती है, that you need to know, not really a mistake। phase difference pi by 2 ये सिंगल वैल्यू है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होता है, जब फेज डिफरेंस 0 हो, या फिर 2 पाई हो, या फिर 4 पाई हो, या फिर 6 पाई हो। और डिस्ट्रक्टिव कब कब होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। तो एक ही वैल्यू पे होता है क्या फेज डिफरेंस की,
नहीं, राइट। तो ये जो कंडीशन आपने दी थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, ये एक ही वैल्यू होगा क्या? नहीं, ये कब कब होगा? कब कब होगा? पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4, मतलब odd multiple of pi by 4. So this is a normal mistake that normally you see usually it happens, क्योंकि हम ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देते। ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ, और उधर क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ n, मतलब हर बार जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तब पार्ट डिफरेंस कितना, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज फॉर फर्स्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पहली वैल्यू इज प्रिंसिपल, तो ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं होगा। इट विल ऑकर whenever you have 2n plus 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए put n value as 0, n value is 0, pi by 4, n value as 1, 3 pi by 4, n value as 2, 5 pi by 4। ये कब कब होगा? जब you have phase difference as 2n plus 1 pi by 4, 2n plus 1 pi by 4, this is what you will get। तो phase difference कितना मिलेगा आपको? 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1। और ये याद रखना है, नहीं तो अगर एक ही वैल्यू ले ली तो इसका मतलब एक ही ब्राइट बनेगा, एक ही डार्क बनेगा, और कुछ दिखेगा ही नहीं। डू यू सी सच अ पैटर्न? व्हाट यू सी इज ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट चलता रहता है। तो ऑफ कोर्स देयर इज नॉट ओनली वन पॉइंट जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयर आर मेनी पॉइंट्स। So now you can solve this, but phase difference is 2 pi by lambda into part difference, but phase difference is given to you as 2n plus 1। 2n plus 1 कितना? 2n plus 1 pi by 2, this is equal to 2 pi by lambda into part difference। cancel and cancel, ये 2 शिफ्ट कर दो तो हो गया 4, लैम्बडा ऊपर शिफ्ट कर दो तो पार्ट डिफरेंस इज 2n plus 1 lambda by 4। तो 2n plus 1 lambda by 4 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources of equal amplitude A and wavelength lambda. In another experiment with the same setup, the two slits are of equal amplitude and wavelength lambda but are incoherent. The ratio of intensity of light at the midpoint of the spin in the first case to that of second case is। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर सेम। तो क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी। 4i लिखो या i0 लिखो, आपके ऊपर है ना। तो अगर आप बोलो कि i0 क्यों लिख रहा हूँ तो 4i लिखो, एक ही बात है। मैक्सिमम मतलब पीक इंटेंसिटी, तो पीक इंटेंसिटी cos स्क्वायर ऑफ 5/2। केस 1 में सोर्सेस आर कोहेरेंट, मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्सेस मतलब फेज डिफरेंस इज 0 और 2n पाई, एक ही बात है, इट इज 0 और 2n पाई। तो कोहेरेंट सोर्सेस में फेज डिफरेंस होता है 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी in this case will be 4i cos square 0/2। what is cos 0? 1 होता है ना, so it is 4i। केस नंबर 2 में as I told you, in case number 2 sources are incoherent। मैंने आपको बताया था कि इनकोहेरेंट का मतलब ये होता है कि फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, मतलब कितना? π/2। ये याद रखना, इनकोहेरेंट वर्ड देखते ही याद होना चाहिए कि फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, π/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दिस केस विल बी 4i cos स्क्वायर π/2/2। नहीं तो सीधा बोल दिया ठीक हो, गलत, जीरो नहीं होगा वो, इट इज π/2। पाई इज π/2/2 मतलब बाय 4। π/4 कितना? cos π/4 कितना? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना? कितना?
हाफ, हाफ ना, गुड। तो ये आ गया I2 इक्वल टू 4I/2, करेक्ट। बट व्हाट इज 4I? I1, I1/2, मतलब यहां से आपको मिल जाएगा I1/I2। कितना I1/I2? 2, I1/I2 2, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the ideal double slit experiment, a glass plate of refractive index 1.5 of thickness T is introduced in the path of one of the interfering beams. The intensity at the position where the central maxima occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of the glass plate is, अगर आपको याद होगा हमने एक स्क्रीन लिया था, if you remember, we have taken a screen and you have two slits. This is center of the screen, let us say, और आपके पास दो slits थे, तो what you had was two slits, और इन दोनों में से एक स्लिट के सामने हम लोग दिया था what you have kept is some other material, जैसे हमने माइका शीट लिया था एक केस में। और if you remember, इस केस में क्या होता है, इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर नहीं होता है, इस केस में फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता है, इस केस में होता सिर्फ इतना है कि पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास पहले अगर इंटरफेरेंस पैटर्न वाज समथिंग लाइक दिस, सेंटर में तो ब्राइट ही होगा, तो यू हैड इंटरफेरेंस पैटर्न लाइक दिस। तो इस केस में व्हाट हैपेंस इज कि पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न इट जस्ट शिफ्ट्स, करेक्ट। और होगा तो हमने जो शिफ्ट का एक फॉर्मूला लिखा था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, तो शिफ्ट का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर करेक्टली, शिफ्ट इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बीटा बाय वेवलेंथ लैम्बडा म्यू माइनस 1 into thickness. This is what you have written down earlier, right? Is this clear? ऐसा हमने शिफ्ट का फॉर्मूला लिखा था। अब क्वेश्चन में ये बोला है इन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, मतलब मैंने एक ही सेट के आगे रखा है, राइट। देन ये बोला है द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा ऑकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब सेंट्रल फ्रिंज जहां था वहीं पे है, करेक्ट। अनचेंज्ड, अनचेंज बोलने की जगह पे जहां था वहीं पे है ऐसा बोलने की जगह पे शिफ्ट इतना हुआ, शिफ्ट कितना हुआ समझ लो। अब एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न आपको नीचे भी मिलेगा, इजंट इट, करेक्ट। शिफ्ट तो होगा लेकिन शिफ्ट इतना हुआ सो दैट जहां पे पहले ब्राइट था अब वापस से वहीं पे ब्राइट है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा ऑकर्ड प्रीवियसली, मतलब पहले जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था वो इंटेंसिटी सेम है, वो इंटेंसिटी सेम है, मतलब जहां पे सेंट्रल ब्राइट था वहां पे वापस से ब्राइट आ गया। द शिफ्ट इज सच दैट ब्राइट की जगह पे ब्राइट आ गया, मतलब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। ब्राइट की जगह पे ब्राइट आना मतलब पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा। और ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला लिखा था आपने, इस शिफ्ट के फॉर्मूला में अगर आप बीटा बाय लैम्डा को हटा देते हो तो दिस बिकम्स पार्ट डिफरेंस, याद रखना, दिस इज पाथ डिफरेंस। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्राइट की जगह पे ब्राइट मतलब पार्ट डिफरेंस जनरेटेड बाय दिस एक्स्ट्रा मटेरियल व्हिच इज ग्लास, एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट, ये जितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा दैट्स इक्वल टू एन लैम्डा। अगर ऐसा बोला होता कि जहां पे सेंट्रल ब्राइट था वहां पे डार्क आ गया तो क्या लिखते,
2m-1 λ/2, करेक्ट। क्वेश्चन समझ लो, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपके पास दो स्लिट्स है S1 एंड S2, और अगर आपके पास यहाँ पे दोनों स्लिट्स के में कोई और मटेरियल नहीं है, तो यू हैव सच अ पैटर्न, सच एन इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड एज यू नो कि जैसे ही आपने दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पैटर्न स्टार्ट शिफ्टिंग। ऐसा हो सकता है जहां पे पहले सेंट्रल ब्राइट था वहां पे अभी डार्क है, मतलब S1 के आगे जो मटेरियल आपने रखा है उसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ब्राइट या डार्क किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लास शीट आपने रखा है इसने पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया सच दैट यू हैव अ डार्क बैंड। तो पार्ट डिफरेंस, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस जनरेटेड बाय दिस शीट इज μ-1 इनटू थिकनेस ऑफ द शीट। ये जो शीट है इसका थिकनेस होगा ना, इसका कुछ थिकनेस होगा, सम थिकनेस t। So you need to understand this, here is nothing but t। तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया दैट इज μ-1 t। अगर ऐसा बोला होता कि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पे मिनिमा है, तो आप क्या लिखते, पार्ट डिफरेंस μ-1 t इक्वल टू 2m-1 λ/2। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि जहां पे ब्राइट था वहां पे ब्राइट ने ही रिप्लेस कर लिया, मतलब पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय दिस प्लेट इज अगेन n लैम्डा। तो व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस, तो टी फाइंड करना है आपको, हो गया क्वेश्चन, n λ/μ-1। मिनिमम थिकनेस n की वैल्यू 1 मान लो। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मिनिमम थिकनेस, अब जब पैटर्न शिफ्ट होगा तो ब्राइट की जगह पे ब्राइट, ऐसा भी आ सकता है, इसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, आते रहेगा। लेकिन मिनिमम थिकनेस के लिए कितना शिफ्ट होना चाहिए, 1 बैंड शिफ्ट होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या डालोगे, 1। फॉर मिनिमम थिकनेस n वैल्यू शुड बी 1, क्योंकि एक ही शिफ्ट हुआ, एक फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ। तो फॉर मिनिमम थिकनेस, n की वैल्यू आनी चाहिए 1। therefore thickness t equal to lambda upon μ-1। what is, अच्छा लैम्बडा की वैल्यू बताया ही नहीं, कोई बात नहीं। what is म्यू वैल्यू 1.5। what is 1.5 minus 1.5, what is 0.5, 1/2, 0.5 is 1/2, मतलब कितना आएगा, 2 लैम्बडा। तो यू शुड गेट 2 लैम्बडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment slits are separated by 0.5 mm, मतलब स्मॉल d की वैल्यू आपको दे दी, स्मॉल d की वैल्यू है 0.5 mm। मैं mm में ही रखूंगा फिलहाल, क्योंकि आंसर किसमें है, mm में, देखते हैं बाद में। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 150 सेंटीमीटर अवे, 150 सेंटीमीटर अवे। A beam of light consisting of two wavelengths, 650 and 520 nanometer, is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both coincide. Okay, so least distance, तो minimum distance, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी ऐसा, अभी अभी बताया भी था मैंने, आज मैंने आपको बताया भी था। एक्स मिनिमम, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, राइट। तो यू नीड टू नो कि क्या करना होता है आपको। तो बिकॉज आई टोल्ड यू, पैटर्न देख लो, एक वेवलेंथ का पैटर्न और दूसरे वेवलेंथ का पैटर्न, वेवलेंथ अलग मतलब फ्रिंज विड्थ अलग। सेंटर पे तो दोनों का बनेगा ब्राइट, क्यों, क्योंकि स्क्रीन टू सोर्स डिस्टेंस इज सेम, कैपिटल डी इज सेम, स्मॉल डी इज आल्सो सेम। व्हाट इज चेंजिंग इज वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रिंज का विड्थ चेंज होगा। सेंटर पे तो दोनों का बनेगा ब्राइट, क्योंकि दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे एक स्लिट से और दूसरे स्लिट से जो लाइट आएगा, दे विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एंड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन बी ब्राइट, राइट।
उसके बाद क्योंकि फ्रिंज विड्थ अलग अलग है तो ऐसा हो सकता है कि एक का ब्राइट दूसरे के डार्क के साथ ओवरलैप हो गया, राइट। फिर वापस से डार्क एंड ब्राइट आर ओवरलैपिंग। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो रेड लाइन से डिनोट किया है मैंने, वेयर ब्राइट ऑफ वन एंड ब्राइट ऑफ द अदर इज ओवरलैपिंग। तो डू यू रिमेम्बर, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड इफ यू रिमेम्बर ये पूरा का पूरा एज इट इज यूज होगा। तो व्हाट यू विल से इज, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक्सट्रीमली सिंपल थिंग एंड आई वांट यू टू रिमेम्बर दिस थिंग्स नाउ। So what you should know is, in this case, what you will have, अभी मैंने आपको बताया n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो सेम, राइट। तो n1 by n2 equal to lambda 2 by lambda 1. What is lambda 2? 520. This is 650. Cancel and cancel. 52 by 65. How much is 52 by 65? 13 का टेबल याद है आपको? 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा and 5 जा। तो n1 equal to 4 and n मतलब पहली वेवलेंथ का फोर्थ बैंड और दूसरे का फिफ्थ बैंड ओवरलैप वो होना भी चाहिए, क्योंकि पहले वेवलेंथ 650 नैनोमीटर है, मतलब उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, ज्यादा फ्रिंज विड्थ है तो उसका लेस नंबर ऑफ ब्राइट बैंड आएगा और जिसका वेवलेंथ कम है उसके ज्यादा फ्रिंजेस आएंगे। अभी तो बताया डायग्राम मैंने, डू यू रिमेम्बर, राइट। और हमने आपको बता दिया अल्सो है वो पहले तो वो दूसरा वेवलेंथ हो, सेंटर से ब्राइट का डिस्टेंस कितना होता है? n लैम्डा d बाय d, करेक्ट। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस। तो पहली बार जब ब्राइट बैंड ओवरलैप हुए तो पहली वेवलेंथ का फोर्थ ब्राइट बैंड और दूसरे का फिफ्थ, तो यू कैन यूज n1 लैम्डा 1 या फिर n2 लैम्डा 2, राइट। व्हाट इज n1? 4। व्हाट इज लैम्डा 1? 650 नैनोमीटर, अलग से नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर में फाइंड करना, सॉरी एमएम में फाइंड करना है, ओके एमएम में फाइंड करना है। तो 650 नैनोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 9 और डी कितना था? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर। अब स्मॉल डी कितना दिया आपको? 0.5 मतलब 10 पावर माइनस 4, 0.5 mm मतलब 0.5 टू 10 पावर माइनस 3 और 0.5 का भी मैंने पॉइंट हटा दिया, इसलिए आपको मिल गया यहाँ पे 5 टू 10 पावर माइनस 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे? 1 जा एंड दिस इज 30 जा। गुड। अब देखो ऊपर 30 है, 30 का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, कितने? 2 बराबर 10 पावर 2 और 10 पर माइनस 2 गया, 10 पावर माइनस 9 और ये ऊपर आके 10 पावर प्लस 4, क्या बचा? 65 इंटू 4, व्हाट इज 65 4 का? बहुत स्लो क्वेश्चन। 260 260 और 3 263 जा 26 जा 78 780 780, दिस इज 780 बराबर हो गया सॉल्व, है क्या? 7 और 8, हाँ हो गया। तो दिस इज अगेन एक जीरो और 4 मतलब 5 9 कितना आ गया? -4। तो 78 इंटू 10 पावर -4 है, मुझे -3 लिखना है तो मैं क्या करूंगा? तो 7.8 इंटू 10 पावर -3 मीटर मतलब 7.8 mm। डन। So that's it for today.